All right. So let's examine uh, this William Sheldon's different body types. Okay, तो अब इन्होंने क्या किया जैसे मैंने कहा he tried to measure the different body type and then he has proposed his theory. So what he has done, he classified people into three different body shapes which correspond with the three different personality types. So इनकी नजर में there are three different personality type and there are three different body types. ये काइंडली ये प्लीज ये नहीं करें प्लीज कोई ये हरकत नहीं करें ओके डू नॉट डिस्टर्ब दिस क्लासरूम एनवायरनमेंट नाउ कैन यू सी स्क्रीन प्रॉपर्ली Yes, sir. जी सर. ओके so he comes with three different body type and he comes with the three different personality type अब यहाँ पे जो मैंने बात की अभी कि there are three different body types according to Sheldon and there are three different personality types as well. Now what he did, he tried to relate each body type with a different personality type. So body type is based on, according this theory, is based on our biology. Become mesomorphy, ectomorphic, endomorphy. These are the biological terms. And personalities types are basically a social phenomena. Is a non-biological term. And what he did, he tried to relate or connect each body type with different personality type. जब पर्सनैलिटी के साथ बॉडी टाइप को उन्होंने मैच कर लिया, रिलेट कर लिया, तो ये चीज बड़ी आसान हो गई कि हम लोगों की फिजिकल फीचर या उनकी बॉडी टाइप को देख के हम उनके पर्सनैलिटी को भी समझ या प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो इस हिसाब से ये थ्योरी है तो एक बायोलॉजिकल थ्योरी और उसका उसका जो जिसका फिजिक एंड क्राइम से ताल्लुक है, लेकिन इस तरीके इस थ्योरी का हमारी सोशल बिहेवियर या कंडक्ट या पर्सनैलिटी पर भी एक असर पड़ता है. ठीक है, तो इस बिना पे इसको बायोलॉजिकल थ्योरी तस्वर किया जाता है. अब उसकी में अब आ जाए, अभी मेन थीम पे आ जाए, तो शेल्डन के मुताबिक तीन डिफरेंट किस्म के लोग हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज हैं. एंडोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फी. एंडोमॉर्फिक इज अ पर्सन एंड एंडोमॉर्फी इज अ टेंडेंसी. एंडोमॉर्फिक, ectomorphic and mesomorphic. Endo, ecto and mesomorphic are three different body types. सबसे पहले endomorph की बात करें. Endomorph are basically a result of this the internal tube. Kindly be mic off रखें please. Endomorph, according to this approach of William Sheldon, have a different type of body. They have a different body type. Like they according to him, endomorph are fatty. They have a tendency to put on fat. They are soft, rounded. They are like in a rounded shape. They have potential to put on fats easily. So मतलब किसी को भी आपको अगर कोई काइंडली माइक को ऑफ रखें. Okay. So endomorphic people are generally they are quite fatty as compared to other population. They have soft skin, velvety skin, round shape. You never find they have the neck because they have the fats. They look quite fatty. Now they try to connect the endomorphic feature with a personality. And what he said these people are sociable, relaxed, easygoing, love to eat, love to sleep, love to have a free time, always involved in eating different type of dishes. They love it, and these people they love to crack jokes. They are tolerant, mind नहीं करते, बुरा नहीं मनाते. They have a good circle of friends. Okay, जिसमें वो हमेशा मजाक
करते रहते हैं, जोक्स क्रेक करते रहते हैं, दे आर क्वाइट जॉयस, डिप्रेशन में कम जाते हैं, दे ऑलवेज इन अ स्माइलिंग मोड. So these people are endomorphic. Personality, physique wise, they are fatty, rounded, soft, okay, and plumpy. And behavior wise, personality wise, they are relaxed, sociable, easygoing, friendly, tolerant. Okay. And he said the endomorph are the people according to their personality. ये लोग क्राइम में कम इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम करते भी हैं तो ज्यादा क्राइम इनके वायलेंट नहीं होते. सो ये लोग इनकी इन्वॉल्वमेंट क्राइम में एक बड़ी हद तक नहीं देखी गई, क्योंकि ये अपना सोशलेबल भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, इजी गोइंग भी होते हैं, और ज्यादा माइंड भी नहीं करते. तो ये कोई बड़े इंटरपर्सनल या कोई दुश्मनी या कोई बड़े सीरियस वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते. फिर आ जाए एक्टोमार्फ की तरफ. एक्टोमार्फ अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप आर थिन, फ्रेजाइल, स्लिम, tall, they have a small frame, okay, droppy shoulders, okay. So these people, they are quite thin as compared to the other categories, and they are fragile as well. Droppy shoulders are there, pointed nose they have. They cannot put on the lot of fats. Fat doesn't put नहीं होता. Even they can eat most of the time a lot, but because of their metabolism system, they cannot put on fats. Put fat उनको कम होता है. So this is their body type. And according to the temperament or personality, they are introverts and restrained. Introvert, सुना होगा आपने, the people who are somehow isolated, less they are afraid of crowds. They do not feel comfortable in a crowd places. They always want to spend their time being alone, being with their family, with friends only. So they avoid talking to strangers. They avoid going to public places or crowds. Okay. So these people are introverts. So these are the introverts basically. Okay. And very much restrained. अपनी feelings को control करते हैं. They cannot easily come out of their feelings. और अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके, कॉन्शियस होके, सेल्फ अवेयर होते हैं बड़े, लोगों के बारे में बड़ा ख्याल करते हैं, लोग क्या कहेंगे. तो वो अपनी फीलिंग्स को या अपनी बिहेवियर को ज्यादातर अपने हाथ तक रखते हैं. ओके. तो ये इंट्रोवर्ट की एक और चीज होती है कि ये क्रिएटिव बड़े होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं. बिकॉज इनका जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो होता है इनका नर्व सिस्टम, स्किन या नर्व सिस्टम. तो ये ज्यादा सोचते ज्यादा है, बिकॉज ये लोगों से कम मिलते हैं, अपने आप को रिस्ट्रेन रखते हैं, तो ये ज्यादा अपना कॉन्शियस ज्यादा होते हैं. तो उसके बिना पे वो ये ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, सोचते भी ज्यादा है, पढ़ते भी ज्यादा है. तो ये क्रिएटिव बहुत होते हैं. किसी फील्ड में चले जाए, जिसमें ये कोई ना कोई इन्वेंशन, कोई ना कोई नई चीज करेंगे, कोई ना कोई नया तजुर्बा, कोई नई क्रिएशन. ओके. और अच्छी अच्छी पोइट्री करते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी चीजों को इन्वेंट करते हैं. तो देयरफॉर बिकॉज़ दे आर सेल्फ अवेयर, और अच्छे और बुरे की पहचान भी करते हैं. तो ectomorph again have the category of body type, and that is connected with their behavior as well now. उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, that is mesomorph, mesomorphy. Mesomorph, according to the body type, are neither endo, they are neither ecto. ये एंडोमॉर्फ की तरह ज्यादा प्लम्पी या फैटी नहीं होते, और एक्टोमॉर्फ की तरह ज्यादा थिन, फ्रेजाइल, लंबी भी नहीं होते. They are somehow in between. It means they are muscular, hard. They have big, they have broad shoulders, broad frame. They उनको fat नहीं होता ज्यादा, but they have muscles. Okay, they have muscles. They have a broad stature. They sometimes they are even have a quite good height, uh, a big frame, having a muscles as well. So ये उनकी बॉडी टाइप होती है. They and muscles are quite hard even. भले उसकी ये वो नहीं होती, कुछ लोग जो एक्सरसाइज करके जिम जा जाके अपने आप को मसल बनाते हैं. तो यहाँ पे बात की नेचुरल टेंडेंसी. अगर कोई नेचुरली तो इंडो या मेसोमॉर्फ है, तो फिर वो चीजें बायोलॉजिकली डिटरमाइंड भी होती हैं. ठीक है. इनका जो बिहेवियर होता है या टेम्परामेंट होता है वो क्या होता है? दे टेंड टू बी एग्रेसिव एंड एडवेंचरस. सोशलेबल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, इसके अलावा वायलेंट भी हो जाते हैं, लीड करना चाहते हैं, क्राउड प्लेस में होते हैं, ज्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं, हर मसले में ये आना चाहते हैं,
एक लीडरशिप क्वालिटी देना चाहते हैं, ये हर जगह पे अपने प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, और हर हर बंदे के मसाइल में भी घुस जाते हैं। तो ज्यादातर ये लोग ज्यादातर एडवेंचरस होते हैं, ये ये पैशन ज्यादा होता है इनके बारे में, ये इतना सोचते नहीं है, कॉन्शियस कम होते हैं, ये लोगों को इतनी केयर नहीं करते, ये अपने आप पर इतना ज्यादा होता है। ये उनकी बॉडी टाइप, ये उनकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और यही लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा, एग्रेसिव भी होते हैं, एडवेंचरस भी होते हैं, और ये वायलेंट भी हो जाते हैं। तो फिर मेसोमॉर्फ के बारे में कहा गया है चिल्ड्रन ने कि ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं या वायलेंट क्राइम होते हैं उसमें मेसोमॉर्फ ज्यादातर पाए गए या देखे गए। बिकॉज जैसे आपने देखे, शेल्डन यूजिंग a correlation study found that many convicts were mesomorph and they were less likely ectomorph। तो जो उन्होंने प्रिजन में रिसर्च की थी रेंडमली, तो इनको ज्यादातर प्रिजन में जो वायलेंट ऑफेंडर्स थे वो मेसोमॉर्फ ज्यादा मिले या पाए गए या उनको नजर आए, एज कम्पेयर टू एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बहुत कम नजर आए। इसका मतलब इन्होंने क्या था कि एक्टोमॉर्फ कम से कम वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, और जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो ज्यादातर कन्विक्ट भी होते हैं, मतलब ज्यादा क्राइम भी करते हैं, और ज्यादातर वायलेंट क्राइम में मेसोमॉर्फ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ दिया गया, लाइक sketches endomorph typical feature like bigger thighs, rounded shape, rounded face, like too much fats, okay। mesomorph आप देख लें, broad shoulder, broad frame, muscles, muscle cut, tall, okay। और फिर उनके आप उसकी जो बिहेवियर से आप देख सकते हैं, ectomorph you can see of course tall, slim, fragile, droppy shoulders, slim facial features, okay। So these are the ecto, endo, meso and ectomorph, ठीक है। अच्छा, एक और बात बड़ी आपको मैं यहाँ पे शेयर करूं कि अकॉर्डिंग टू शेल्डन सारे लोग टिपिकल एक्टो, एंडो या मेसो नहीं होते, क्योंकि इन्होंने बात की है बॉडी टाइप की, तो इन्होंने एक स्केल बनाया था, मेजरमेंट स्केल। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो कोई ना कोई स्केल हमारे पास होता है, ठीक है, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, फीट हो, ठीक है। वो उस स्केल के बुनियाद पे हम वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं। इन्होंने भी एक स्केल बनाया था फ्रॉम 1 to 7, जिसमें उन्होंने 1 से लेकर 7 पॉइंट्स रखे थे, ठीक है। अब ये स्केल कैसा था वो तो हमें नहीं पता, उन्हीं को पता होगा, लेकिन हमें इन्होंने थ्योरेटिकली बताया था कि उस स्केल के हिसाब से ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स को मेजर करते हैं। उसमें सबसे जो कम से कम है नंबर वो है 1, सबसे जो ज्यादा नंबर है वो है 7, नॉट लेस देन 0, नॉट मोर देन 7। तो 7 इज अ टॉप एंड 1 इज अ बॉटम। इन्होंने कहा कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो टिपिकल एक्टो, मेजो या एंडो नहीं होते, बहुत कम होते हैं टिपिकल। आपको ज्यादातर लोग क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं एक्टो, एंडो और मेसोमॉर्फी का। मतलब उनमें कुछ फीचर एंडो के होते हैं, कुछ मेजो के होते हैं, और कुछ एक्टो के होते हैं। तो उसी तरीके से क्योंकि उनके फिजिकल फीचर भी मिक्स होते हैं, तो उनकी जो टेम्परामेंट होता है, उनका जो जो पर्सनैलिटी होती है वो भी मिक्स होती है। कुछ चीजें एक्टो की, कुछ एंडो की, तो हमें इतना समझ भी नहीं आता कि हम कैसे करें। लेकिन जब हम इन चीजों को समझते हैं तो फिर हम फिर समझ जाते हैं कि ये लोग शेयर्ड हैं, ये लोग आपस में मिक्सचर हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर भी आपस में क्वाइट मिक्स या इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो सपोज करें, अब एक ऐसा ऐसा एक अगर सपोज करें 7 नंबर की बात हुई, मतलब अब आपको 7 नंबर डिवाइड करना है एक इंसान के बॉडी टाइप को, कैसे, 2 2 3 करके कहें, 2 to 3 कितना हुआ, सब 2 to 3 का सम करेंगे तो कितना हुआ, 7। अगर 5 1 1 को करेंगे कितना हुआ, 7। अगर 4 2 1 को करेंगे तो कितना हुआ, 7। अगर 5 2 को करेंगे, 0 को 7 हुआ। मतलब किसी तरीके से आपको 7 नंबर आपका आंसर होना चाहिए, और आपको उसको 3 प्रॉपर्टीज में उसको आपको उसको क्लासिफाई डिवाइड करना है। तो सपोज करें, यहाँ पर जो फोटो दिए गए हैं तो टिपिकल है, मतलब 0 0 7। अब सबसे पहला जो फीचर आता है वो होता है एंडोमॉर्फ का, फिर आता है मेसोमॉर्फ का, आखिर में आता है एक्टोमॉर्फ का। तो अगर कोई बंदा 0 0 7 है, तो 0 से मुराद एंडोमॉर्फी उसमें नहीं है, 0 से मुराद मेसोमॉर्फी उसमें नहीं है, 7 से मुराद के वो टिपिकल एक्टोमॉर्फ है। लेकिन अगर उसकी बॉडी टाइप मिक्स है
तो फिर हो सकता है वो 2 3 2 हो। टू से मुराद के टू टू मतलब दो नंबर उसके पास एंडो के हो, और 3 उसके पास मेजो के हो, और 2 फिर उसके पास एक्टो के हो, मतलब 1 एक्टो का हो। तो फिर टिपिकल वो लोग नहीं रहते, क्योंकि आपको फिर उनको मेजरमेंट के हिसाब से वो नंबर या वो मार्क्स या वो स्कोर या वो मेजरमेंट नंबर देना पड़ता है, अगर उनकी बॉडी टाइप वैसी है। मतलब अगर 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 सपोज करें हाइट भी है, स्लिम भी है, कोई हद तक मस्कुलर भी है, तो फिर ये लोग एक्टो भी हुए एक हद तक, और ये फिर मेजो भी हुए। लेकिन उन दोनों में से जो चीज ज्यादा डोमिनेट होगी उन पर, मतलब ज्यादा मसल से ब्रॉड भी है तो ज्यादा मेसोमार्फ होंगे, और थोड़े कम एक्टो होंगे, और एंडो तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो नंबर क्या होगा उनको यहाँ पे? 0 3 0 5 2। अब 0 से मुराद के एंडोमार्फ नहीं है तो 0, 5 से मुराद के मेसोमार्फ है ज्यादा तो 5% ज्यादा आ गया, और फिर एक्टोमार्फ थोड़ा कम है तो 2% आ गया, तो टोटल कितना हुआ? 7। तो ये लोग मिक्स हुए फिर। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जी जी, ओके। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट दिस विलियम शेल्टन अप्रोच ऑफ बॉडी टाइप। ठीक है। अब मैं आपको, जी क्वेश्चन, तो मेसोमार्फ की बात कर रही हैं आप? जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन टॉक अबाउट इट। आप बेसिकली मेसोमार्फ की बात कर रही हैं जी। तो जो मेसोमार्फ होते हैं उनका जो चांस होता है क्राइम के लिए, जो आपने सवाल पूछा है, वो चांस की बात यहाँ पे सच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है? कोई कोई भी हार्ड एंड फास्ट फिगर्स नहीं है इसके बारे में। ठीक है? कि इतना परसेंट या इतना परसेंट। ठीक है? ये एक बेसिकली जनरलाइज बातें कर रहे हैं कि फला बॉडी टाइप अगर किसी की होगी, तो वो एसोसिएट उसमें कुछ फीचर्स होंगे, फिजिकल पर्सनैलिटी के फीचर। मतलब फ्रेंडली होना, फ्रेंडली नहीं होना, सोशल होना, सोशल नहीं होना, एंटी सोशल होना, इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना। है ना? आप देखें, आप अपने आप को असेस करें कि हम हमारी एक पर्सनलिटी होती है। पर्सनलिटी बेसिकली क्या होती है कि हम कुछ भी करें, जॉब करें, काम करें, पढ़ें, कोई ताल्लुक रखें, कोई 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 भी जिम्मेदारी सर अंजाम दें, हमारी पर्सनलिटी हम पर डोमिनेट होती है। ठीक है? और हम अपनी पर्सनलिटी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो हम अपनी पर्सनलिटी के हिसाब से ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है? तो उसी तरीके से अगर एक बंदा जो ज्यादा वायलेंट है, उसका मेजोबाव की बात हो रही है, ज्यादा गुस्सा आता है, एडवेंचर होता है, लोगों से ताल्लुक ज्यादा रखता है, तो ऐसा बंदा क्योंकि एग्रेसिव ज्यादा है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, हर मसले में वो जाता है, हर बंदे से ताल्लुक रखता है, तो नेचुरली उस बंदे का मसाइल में घिरना, इश्यूज में आना, लड़ाई झगड़ों में आना बढ़ जाता है। तो नेचुरली क्राइम का चांस भी बढ़ जाता है उस हिसाब से। ठीक है? लेकिन एक बंदा जो इंट्रोवर्ट है, एक्टोमाफ है, कम से कम लोगों से मिलता है, मिलता भी है तो अपने सर्कल में ही रहता है ज्यादातर अपने काम से काम रखता है, रिजर्व होता है, शाय होता है, अपने अपने काम से स्टिक करता है, तो क्योंकि ये मसाइल में भी नहीं आता, लोगों से ताल्लुक भी कम रखता है, रिस्क भी नहीं लेता, चेंज भी नहीं अपनाता, तो नेचुरली उसके पास मौके भी कम होते, और इश्यूज भी कम होते हैं, और वो चीज अवॉइड भी करता है, तो उसका चांस कम से कम होगा। तो ये बातें सारी पॉसिबिलिटी की हो रही है यहाँ पे। तो वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और एक्टो में और फिर एंडो में पॉसिबिलिटी कम बड़ी कम है। तो फिर शेल्डन के मुताबिक जितनी इन्होंने रिसर्चेस की हैं, प्रिजन में की, इन्होंने यूनिवर्सिटीज में की, कॉलेजेस में की, इनको ज्यादातर वायलेंस में, क्राइम में, बुलिंग में ज्यादातर मेसोमार्फ पाए गए, मेजोरिटी, और उसके बाद एंडोमार्फ। और कम से कम जो लोग इन्वॉल्व पाए गए इन इश्यूज या क्राइम में, वो एक्टोमार्फ थे, जो बहुत कम या न होने के बराबर इन पाए गए थे। ठीक है? तो जिसके बुनियाद पर इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी टाइप डिटरमाइन करती है हमारी पर्सनैलिटी, और हमारी पर्सनैलिटी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे होंगे, या हमारा बिहेवियर कैसा होगा, जो बेसिकली बायोलॉजिकल थ्योरी के दायरे में आता है।
तो कोई सवाल हो तो इस सवाल से काइंडली मेंशन करें या पूछें। तो फिर मैं जो सेकंड हमारे पास जो जो उसके फीचर्स हैं, इसको हम कहते हैं फैमिली स्टडी, जेनेटिक्स और हेरिडिटी, इसकी थोड़ी बहुत बात कर लें। जी, आई होप ऑल इज क्लियर। जी, नाउ चेक इट, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर अप्रोच। आपने क्या नहीं समझा? आई 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 ब्रीफ यू, वी ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। सो मेरा जो मैं ब्रीफली फिर दोबारा कह रहा हूँ कि naturally mesomorph, they have more potential to involve in a crime. Okay, तो पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादा होता है बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि दे आर एडवेंचरस, दे आर एग्रेसिव, दे आर शॉर्ट टेम्पर, दे आर रिस्क टेकर्स। अपनी उस पर्सनैलिटी के बुनियाद पे या अपनी उस आदतों के बुनियाद पे ये लोग ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में, डिस्प्यूट्स में या फिजिकल फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है कि हम इसको थ्योरी को बायोलॉजिकल तरीके से देख सकते हैं कि मेसोमॉर्फ ऐसे होते हैं पर्सनालिटी वाइज, एक तो ऐसे होते हैं एंडो। लेकिन इनका एक सोशल एक्सप्रेशन भी होती है जो जिसको हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अप्रोच को। कि सपोज करें एक बंदा जो एंडोमॉर्फ है, तो एंडोमॉर्फ कैसे होते हैं? फैटी, प्लम, पुट ऑन फैट। तो ऐसे लोग जो ज्यादा फैटी हों उनमें कोई बीमारियां भी हो जाती है, लाइक डायबिटिक होना, लाइक अपना लेजी होना। तो उसकी बुनियाद पे ये लोग एक हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पास के लिए ये फन करते हैं, जोक्स पढ़ते हैं, क्रैक करते हैं। तो ये एक सोशल पर्सपेक्टिव भी है इसका। ठीक है, उस तरीके से जो एक्टो की बात करें तो एक्टो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को बर्न करते हैं, इंटेलेक्चुअली अवेयर होते हैं। और फिर क्योंकि वो फ्रेजाइल होते हैं, मस्कुलर कम होते हैं, तो ये झगड़ों और फाइट में कम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है उनका इन्वॉल्व होने का। और मेसोमॉर्फ क्योंकि बात हो रही है कि दे हैव बिग मसल्स, बिग स्ट्रेंथ। ओके, तो वो अपने मसल या अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इस ताकत की बुनियाद पे शायद वो ज्यादातर मसाइल या इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अलग एक एक चीज है जिसको जो इस थ्योरी से अलग एक एक क्रिटिसिज्म हो सकता है इस पर। ठीक है, बाकी इसकी जो बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन है वो तो अपने साथ मौजूद है कि ये बायोलॉजिकली ऐसे होते हैं और अपने उस बायोलॉजी के बुनियाद पे इनकी पर्सनैलिटीज भी ऐसी फिर बाद में बन जाते हैं। ठीक है, तो जी अभी आ जाए, लेट्स टेक दी अनदर पॉइंट, दैट इज के फैमिली स्टडी से क्या मुराद, जेनेटिक्स का रोल क्या है और हमारी हमारी जीन्स का रोल क्या बनता है। आप देखें कि जो पहली अप्रोच थी बायोटेक्नोलॉजी में वो थी फिजिक एंड क्राइम की। इसके बारे में कहा गया था कि हमारी बायोलॉजी हमारे फिजिकल फीचर को एक्सपोज करती है, हमारे फिजिकल फीचर्स को पढ़ के हम किसी के बिहेवियर को समझ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट अप्रोच है विद इन बायोलॉजी, अभी तो बात से बायोलॉजी और क्राइम का एक ताल्लुक की हम बात करें, वो है जेनेटिक्स, जीन्स और हेरिडिटी। वो जीन्स जो हम अपने पेरेंट्स से बारो करते हैं या फिर हमारी जेनेटिक्स, हमारी जीन्स जो हमें हमारी अलग होती है। मतलब हमारी जीन्स या हमारी जो जीन्स लाइक 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 जेनेटिकल स्ट्रक्चर, एक लाइफ जो हमारी होती है। जीन्स हमारी अगर हमारी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, हमारी बिहेवियर को, तो उसका मतलब है कि हमारा सोशल बिहेवियर, क्राइम समेत, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। ठीक है, मतलब नेचर वर्सेस नर्चर। अब यहाँ पे बात हो रही है एक सिर्फ क्राइम की या फिर ह्यूमन कंडक्ट की। तो आप देखें, हम बार बार ये बात मानते हैं कि चिल्ड्रन रिजेंबल विद पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, मतलब बच्चे माँ बाप पे जाते हैं अपने आउटलुक के हिसाब से, अपना कलर, अपनी हाइट, वेट, फिजिकल फीचर, फेशियल फीचर। चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती हैं जो वो अपने पेरेंट्स से
लेते हैं, ऑलमोस्ट सम ऑलमोस्ट लाइक, मतलब एक ऐसा हाफ होता है जीन्स का जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो जेनेटिकली हमारा अगर फिजिकल फीचर अगर हमारे जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं, है ना, अगर एक अफ्रीकन हो तो अफ्रीकन रेस जो है वो जेनेटिकली अफ्रीकन नजर आएगी आपको, डिफरेंट कलर। अगर एक गोरा हो, अंग्रेज हो, तो वो जेनेटिकली वो अंग्रेज, उसके बच्चे भी अंग्रेज, और उनका एक खास फीचर होंगे। उस तरीके से अगर एशियन की बात करें, फिर डिफरेंट मॉल की बात करें, so people, so children, they resemble their parents, their particular race, and that is generally determined। जीन्स की बात है पूरी, ठीक है। अगर हमारे जीन्स में पता है कि हमारी फिजिकल फीचर को डिटरमाइन करते हैं, तो हमारे जीन्स हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं या नहीं, ये पूरी बात है। यहाँ पे पूरी थ्योरी इसी पर चलती है कि वेदर जीन्स प्ले एनी पार्ट एज फार एज बिहेवियर इज कंसर्न, या सिर्फ जीन्स का रोल हमारे फिजिकल फीचर की हद तक ही है, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए तीन डिफरेंट किस्म के थ्योरीज या रिसर्चेस या फार्मूलाज, एक्सपेरिमेंट हुए। फैमिली स्टडीज, ट्विन स्टडीज, या फिर एडॉप्शन स्टडीज। सबसे पहले जो मेथड था जिससे ये चीज प्रूव की गई या कोशिश की गई कि जीन्स का रोल या हेरिडिटी का रोल है या नहीं है, वो था फैमिलीज को स्टडी करना। मतलब अगर एक फैमिली में माँ बाप क्रिमिनल हैं और उनके बच्चे भी क्राइम करते हैं, तो ये चीज सोची जा सकती है कि क्राइम रन्स इनटू फैमिलीज। मतलब उन माँ बाप ने अपने, वो माँ बाप ने क्राइम इसलिए किया था बिकॉज उनकी जीन्स क्रिमिनल थी, और उनके बच्चों ने क्राइम इसलिए किया था कि वो जीन्स उन्होंने अपने माँ बाप से बारो की, मतलब जीन्स का रोल है तभी उन्होंने क्राइम किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्राइम रन्स रन्स इनटू फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक क्रिमिनल के यहाँ पर क्रिमिनल बच्चे पैदा होंगे, तो उनके बच्चे भी क्रिमिनल होंगे, फिर उनके बच्चे भी क्रिमिनल होंगे, मतलब फिर ये फैमिलीज में क्राइम रन करेगा थ्रू जीन्स, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात भी है, नर्चर की। कि जब एक क्रिमिनल के यहाँ बच्चे पैदा हो, या जो क्रिमिनल के यहाँ बच्चे जो बड़े हों और वो भी क्राइम करें, तो फिर बायोलॉजी का रोल तो चलो ठीक है, हो सकता है। लेकिन ये भी एक बात बड़ी ठीक है कि हो सकता है कि उनकी तरबियत हुई हो, लर्निंग जो हुई हुई हो, जो ट्रीटमेंट हुई हो, वो भी बुरी हुई होगी नेचुरली, बिकॉज उनके माँ बाप भी क्रिमिनल है, तो क्या तरबियत की होगी उन्होंने। तो जो एनवायरनमेंट उनको मिला है वो बड़ा कंड्यूसिव मिला है टू लर्न क्राइम, वायलेंस एंड ऑल अदर एंटी सोशल बिहेवियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट नर्चर, इट्स नॉट नेचर। बट अगर क्रिमिनल के यहाँ क्रिमिनल बच्चे पैदा हो और क्राइम करें, तो ये नर्चर है, उनकी उनकी तरबियत का अमल है, इसमें कोई भी जीन्स का अमल या दखल नहीं है, ठीक है। तो जो फैमिली स्टडी थी उनमें तो बड़ा सिंपली ये देखा गया कि वो सारी फैमिलीज जहाँ पर माँ बाप या कोई ना कोई एक या दोनों क्राइम कर चुके हैं, तो वो डेफिनेशन के मुताबिक क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई भी क्राइम। तो उनके बच्चे अगर क्राइम कर रहे हैं तो जीन्स का रोल बनता है, और नहीं कर रहे तो नहीं बनता। लेकिन जब ये बात आ गई कि नर्चर का रोल भी नहीं बना हमें, जो 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 सपोर्टर थे उन्होंने तो रिसर्च उन्होंने तो कह दिया कि काफी मेजोरिटी ऐसी फैमिलीज मिली, जब रिसर्च जिन लोगों ने की कि क्रिमिनल के यहाँ जो बच्चे थे वो भी क्राइम कर रहे थे, उन्होंने तो बड़ा सिंपली कह दिया कि जीन हैज रोल, बायोलॉजी हैज रोल। लेकिन जब ये बात आ गई सामने कि नर्चर का रोल वहां पे ज्यादा नजर आना शुरू हो गया, कि क्योंकि तरबियत ही ऐसी हुई तो फिर क्राइम तो करेंगे, तो फिर इस थ्योरी को या इस एक्सपेरिमेंट को एक नुकसान या एक सेटबैक लगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपनी थ्योरी को, मेथड को रिफाइन किया, और एक नई स्टडी की ट्विन स्टडीज के नाम पे, जो ज्यादा ज्यादा डेनमार्क में हुई, यूरोप में हुई, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, अगर आप बायोलॉजी फैक्टर्स को जब किसी भी आप बुक से, सीगल के बुक से अगर आप पढ़े रेफर करेंगे, तो सीगल ने अपने बुक में प्रॉपर तरीके से रिसर्च रिपोर्ट किए। मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपको रिसर्च तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं रिसर्च की फाइंडिंग्स आपको बता रहा हूँ जनरल जनरल करके, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक रिसर्चेस भी पढ़नी है थोड़ी बहुत, तो वो डिफरेंट बुक्स में यू विल फाइंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो पता नहीं कितनी की है, हर बंदे ने अलग तरीके से की है, और वो रिसर्च आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जो
ट्विन स्टडीज क्या होती है? ट्विन्स किसे कहते हैं आपको पता होगा? ट्विन से मुराद के बच्चे जो अ, एक ही टाइम पीरियड में पैदा हो, एंड दे आर मोर देन वन। ओके, ज्यादा दो होते हैं। ओके, तो दो आर नोन एज ट्विन। ओके, अब ट्विन में दो तरीकों के ट्विन्स होते हैं। वन आर आइडेंटिकल, दूसरे फ्रेटर्नल ट्विन्स। ओके, आइडेंटिकल ट्विन्स आर क्रिएशन ऑफ वन फर्टिलाइज्ड एग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक ही प्रोसेस का नतीजा होते हैं, एंड दे आर फर्टिलाइज्ड बाय वन प्रोसेस। Okay, and they are the result of one egg fertilization. And those identical twins shared 100% same genes. Identical twins जो होते हैं उनमें 100% जो genes होती हैं वो सेम ही होती हैं। तो मुराद क्या हुआ कि they have similar genes from 1 to 100। और अगर आप में से आपने किसी ने आइडेंटिकल ट्विन देखे हो, आपने देखे होंगे कि वो नजर बिल्कुल एक जैसे आते हैं। वही आउटलुक, वही फीचर्स, वही कलर, वही हेयर स्टाइल, वही हाइट, वही वेट, दे लुक लाइक सेम। मतलब एक बंदे को देखें फिर दूसरे को देखें, यू नेवर फाइंड डिफरेंस। ठीक है, तो दीज आर, और उनकी जेंडर भी वही होती है बिकॉज दे शेयर सेम जीन्स। मतलब दो अलग अलग इंसान, लेकिन जीन्स उनकी वही होती है सेम। फिर फेटरल ट्विंस से मुराद के वो ट्विंस जो होते तो एक ही टाइम पीरियड में पैदा होते, लेकिन उनकी जीन्स जो होती है वो 50% सेम होती है। और अगर हम किसी आम बहन भाइयों की या सिबलिंग की बात करें जो मतलब एक टाइम पीरियड पैदा होते, मतलब एक साल में एक बच्चे पैदा हुए, फिर नेक्स्ट टर्म में बच्चे पैदा हुए, तो ये सिबलिंग एक आम सिबलिंग होते हैं। इन सिबलिंग में भी जो जीन्स होते हैं वो 50% सेम होते हैं। मतलब अगर आपका कोई भाई है जो आपसे एक साल बड़ा है या 2 साल बड़ा है, तो उस भाई, आपके भाई में और आपकी जो जीन्स होगी वो 50% सेम होती है, 50% वो अलग अलग होती है। तो आप बिल्कुल उस जैसे नजर नहीं आते, लेकिन कुछ रिजेंबल हम करते हैं। ठीक है, तो फेटर्नल ट्विंस आर लाइक एक उस तरीके के होते हैं। मतलब उनकी जेंडर भी अलग हो सकती है, एक बच्चा एक बच्ची, कलर, फीचर, हाइट, वेट, हेयर स्टाइल एंड कलर, बिकॉज उनकी जीन्स अलग अलग जब होती है तो उनके फीचर भी अलग अलग बन जाते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो क्या किया गया, आइडेंटिकल ट्विंस को असेस किया गया। अगर एक ट्विन क्राइम कर रहा है और दूसरा भी क्राइम कर रहा है, या एक नहीं करा दूसरा भी नहीं करा, तो उससे मुराद ये लोग करते थे कि ये इट्स ऑल बिकॉज अबाउट द कॉमन और सिमिलर जीन्स। ठीक है ना? इनकी नजर में अगर एक ट्विन क्राइम कर रहा है और दूसरा भी क्राइम कर रहा है, तो नेचुरली जब ये बात पहले कह रहे हैं कि दे हैव सेम जीन्स 100%, तो एक ने अगर क्राइम किया दूसरे ने भी किया, तो ये चीज इनकी नजर में बड़ी क्लियर हो गई, इट्स ऑल बिकॉज अबाउट बायोलॉजी। तो ये इतना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों ही बच्चे क्राइम करें। ठीक है, तो इनकी थ्योरी, इन्होंने अपनी थ्योरी को रिफाइन करके, अपने मेथड को रिफाइन करके जब रिसर्च की, उनके पास रिजल्ट बड़े सिग्निफिकेंट थे कि मेजॉरिटी केसेस में, मतलब 50% ज्यादा केसेस में, जब एक ट्विन क्राइम कर रहा था दूसरा ट्विन भी क्राइम कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूड कर लिया कि बायोलॉजी एंड जीन्स का एक बड़ा रोल नजर आता है। लेकिन फिर जो क्रिटिक्स थे उन्होंने फिर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि क्योंकि जो ट्विंस होते हैं पर्टिकुलरली आइडेंटिकल, उनकी जो तरबियत होती है वो एक ही माहौल में होती है। माँ बाप उनको वही कपड़े पहनाते हैं, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही क्लास, वही टीचर, वही कोर्स, वही उसी टाइम पर खिलाते हैं, उसी टाइम पर उठाते हैं, उसी पर वो सोते हैं, तो उनकी आदतें भी एक सी बन जाती है। ठीक है, अगर फिर एक एक का बिहेवियर अगर एक जैसा हो, तो दूसरे का बिहेवियर भी उससे रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट को यहाँ पे आपने अभी माइनस नहीं किया। इन्वायरमेंट या नर्चर का रोल अभी भी ट्विन स्टडीज में रहा था। तो उन्होंने तो बात की थी कि रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जब एक ट्विन एक तरीके से बिहेव करे या क्राइम करे, तो दूसरा ट्विन मेजॉरिटी केसेस में वैसा ही करता है। लेकिन फिर जो क्रिटिक्स है उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट बायोलॉजी, इट्स मे बी बिकॉज अबाउट सोशोलॉजी और लर्निंग और ट्रेनिंग। ठीक है, तो फिर इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपनी उसी थ्योरी को फिर अपग्रेड कर लिया विद एडॉप्शन स्टडीज। एडॉप्शन किसे हम कहते हैं? बच्चों को गोद में ले लेना। काफी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बच्चों को गोद में लेते हैं, जो उनके अपने बच्चे नहीं होते, बट दे दे अडॉप्ट द चिल्ड्रन। और काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो
जो जिनके माँ बाप नहीं होते, डेथ हो जाती है उनकी, जेल में चले जाते हैं, या खुद अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, या फिर वॉलेंटरली बच्चों को किसी के हवाले करते हैं अपने रिलेटिव के। तो ऐसे ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे, या माँ बाप न होने जिनके पास, वो बच्चे, कुछ लोग उनको फिर अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। एडॉप्शन से मुराद यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम, अब देखो दो तरीके के पेरेंट्स यहाँ पे सामने आते हैं, एक एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एक नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? जिन्होंने पैदा किया, जिनकी जीन्स 50% सेम थी। नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के मुताबिक वो पेरेंट्स जिन्होंने उनको परवरिश की, एडॉप्ट अडॉप्टिव पेरेंट्स। नॉन बायोलॉजिकल, जिन्होंने उनको सिर्फ, जिन्होंने पैदा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उनको परवरिश की, उनको ट्रीट किया, उनको खिलाया पिलाया, उनको समझाया, उनकी तरबियत की। तो अगर यहाँ पे एक, अगर बच्चे, अगर उनके माँ बाप बायोलॉजिकल क्रिमिनल्स हैं, और जिन्होंने तरबियत की वो नॉन क्रिमिनल्स हैं, और वो क्राइम करते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि अब बायोलॉजी का रोल क्या बनता है। तो इस हिसाब से चार डिफरेंट मेथड्स या सैंपल्स लिए गए। चार सैंपल से मुराद के चार डिफरेंट, डेनमार्क में ये हुआ सबसे पहले रिसर्च। चार डिफरेंट तरीकों से वो रिसर्च की गई। एक तो उन उन बच्चों, माँ बाप को देखा गया जो खुद क्रिमिनल थे, और जिन्होंने अडॉप्ट किया वो क्रिमिनल नहीं थे, तो ये रेशो देखा गया। फिर एक रिसर्च की गई कि जिन्होंने पैदा किया वो क्रिमिनल नहीं थे, जिन्होंने परवरिश की वो क्रिमिनल थे। तो फिर रिजल्ट क्या है शेयर करूंगा आपसे मैं। फिर तीसरी रिसर्च क्या थी कि जिन्होंने पैदा किया वो भी क्रिमिनल थे, जिन्होंने परवरिश की वो भी क्रिमिनल थे। तो फिर क्या हुआ? फिर फोर्थ में, जिन्होंने पैदा किया वो भी नॉन क्रिमिनल थे, और जिन्होंने परवरिश की वो भी नॉन क्रिमिनल थे। अब यहाँ पे रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस रिसर्च में आपने इन्वायरमेंट को, नर्चर को काफी हद तक कंट्रोल या माइनस कर लिया है। ठीक है। तो क्या हुआ? सबसे पहले, जब माँ बाप भी क्रिमिनल थे, मतलब जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिमिनल थे, और जिन्होंने परवरिश की नॉन बायोलॉजिकल वो भी क्रिमिनल थे, तो जब फाइंडिंग देखी गई, तो अराउंड अराउंड रफली स्पीकिंग 40 to 45%, 40 to 45% बच्चों ने क्राइम किए once they have a biological parent as criminal, and those who adopt them as non criminals। मतलब उनके जो पैदा किया उन्होंने, जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने परवरिश की, वो नहीं थे। ये सालों साल रिसर्च चलती है। तो फिर ये पता पड़ा कि, ओहो, जी जी, मीटिंग शायद लॉक चली गई थी। बाकियों को इन्फॉर्म करें, वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। अच्छा, आपने याद करा दिया जी, ओके। दोज हु आर वेटिंग, प्लीज ग्रुप इन कंफर्म कर दें कि दे कैन ज्वाइन नाउ। ओके जी। सो द पॉइंट वाज दैट their biological parents, they were criminal, and those who